ایمان سے بتاؤ، کبھی اس انا کو، اس مائنڈ کو تم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی خواہشوں کی ساری سکیم پر تم نے غور کیا ہے؟ جو مل جاتا ہے وہ بیکار ٹھہرتا ہے۔ منزل ہمیشہ دور دیسوں کا سفر رہتی ہے۔ جو چاہتے ہو وہ پریشان رکھتا ہے، جو چاہا اور پا لیا وہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ یہ انا، یہ مائنڈ آخر کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کو سمجھنا ایک اکلوتا حل ہے۔ یہ نہ سمجھو گے تو نہ عبادتیں کام کریں گی، نہ میڈیٹیشنیں۔ مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ عہدہ، کوئی سٹیٹس مل جائے تو بھی بے چین، نہ ملے تو بھی بے چین۔ چاہا گیا عہدہ نہ ملے تو دکھ، مل جائے تو اس کے فضول ہونے کا احساس۔ غریب روتا ہے کہ امیر نہیں، دولت نہیں، اور جو امیر ہے، جو دولت مند ہے، وہ پھر کیوں رو رہا ہے؟ غور سے دیکھو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ فضول ہو گیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ فضول ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ اور جو دور ہے وہ بھی اتنا ہی فضول ہے، مگر چونکہ دور ہے اس لیے اس میں کشش قائم ہے۔ جو حاصل ہے وہ بیکار ہے، اور جو بیکار ہے مگر دور ہے، اس کے حاصل کرنے کی خواہش میں جل رہے ہو۔ دونوں ہی طرف سے صرف جلن مل رہی ہے۔ یہ ہے تمہارے مائنڈ کا جال، تمہاری انا کی پہیلی۔ اس کو سمجھ لو، اس کو پہچان لو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسئلہ بس ایک ہے کہ جس ٹول سے آپریٹ ہوتے ہو اس ٹول کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور یہ سمجھنا اتنا مشکل کیسے ہو گیا کہ تم اس مائنڈ کو، اس میں کو ہر وقت جی رہے ہو؟ کوئی دور تھوڑی ہے، کوئی چھپی ہوئی مخفی چیز تھوڑی ہے۔ زیادہ کھاتے ہو تو ڈائٹ کا خیال ستاتا ہے، ڈائٹ کرنے لگو تو کھانا لبھانے لگتا ہے۔ کھانا کھلا رہا ہے مائنڈ، کھانے میں لذت پا رہی ہے میں، اور یہ خیال بھی سجا سنوار کے پیش کر رہی ہے انا کہ جو ڈائٹ کرتے ہیں وہ مزے میں ہیں، وہ شانت ہیں، وہ صحت مند ہیں، ان کی زندگی خوبصورت ہے، بھرپور ہے۔ ڈائٹ کے پلانز دیتا ہے یہی مائنڈ، اور ساتھ ہی کھانے کی لذت کو سب سے طاقتور یاد بنا کر پیش کرتا ہے یہی مائنڈ۔ سمجھ رہے ہو کھیل کو؟ کھیل کیوں؟ اس پاگل پن کو۔ انا، یاد رکھنا، ایک طرح کا پاگل پن ہے، دو اپوزٹس کے درمیان کھچا ہوا، کھینچتا ہوا۔ یہ میں عارضہ ہے، ایک بیماری ہے۔ اس میں، اس مائنڈ سے نجات ہے آزادی۔ اور جب میں کہتا ہوں نجات تو کچھ نادان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مائنڈ رہے ہی نہ۔ مائنڈ سے نجات ہے مائنڈ کے کام کرنے کے طریقے کو جان لینا، کیونکہ جس کو تم جان لیتے ہو وہ الجھن بن سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے۔ صحت یا کہہ لو انلائٹنمنٹ ہے اس مائنڈ سے پار ہونا، اور پار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جان لیا گیا، سمجھ لیا گیا۔ اس کا امتحان دے کر اگلی کلاس میں پہنچ گئے۔ جب ایک کلاس کو بچہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اسی کلاس کو دوبارہ پڑھنا تھوڑی پڑتا ہے، پھر اگلی کلاس ہوتی ہے، اگلے مرحلے ہوتے ہیں۔ جان لیا گیا تو تم مائنڈ سے پار ہو گئے۔ یہ ہے تمہاری صحت مند حالت۔ تو پہلی بنیادی بات تو یہی ہے، مائنڈ کے اس کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ یہی سمجھنے کی کوشش کم کرتے ہیں، وہ بس بھاگتے ہیں، فرار پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائنڈ ہے، شور مچا رہا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ کر اس ساری بھاگ دوڑ اور سوچوں کے طوفان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ شاپنگ کرنے نکل گئے، شراب کی بوتل لے آئے، سینما نکل گئے، فلم دیکھ آئے۔ وقتی طور پر تو ان سب حرکتوں کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے، فرار کام آ جاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ان سب جگہوں سے وہ کچھ اور شور بھر کر واپس لے آئے ہیں۔ تو اگلی دفعہ جب سوچوں کا حملہ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا، کیونکہ تم نے کچھ اور ایڈیشنز اس میں کر دیے ہیں۔ دماغ کے کتے کے لیے سوچوں کی اور کئی ہڈیاں لے آئے ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاپنگ، مے خانہ، سینما جانے کی بجائے دوسرا راستہ چنتے، جیسے میڈیٹیشن، جسٹ بیٹھے اور خود کو دیکھتے رہے، ان سوچوں کو دیکھتے رہے، تو اس سے یہ ممکن ہے کہ فرار سے جو وقتی لذت ملتی ہے وہ نہ ملے، مگر اگلی دفعہ جب سوچوں کا حملہ ہوگا تو وہ اپنی شدت میں اس سے کہیں کم ہوگا۔
निजात फरार में कभी थी ना होगी, निजात तो बस समझने में है। फिल्म, शराब, शॉपिंग फरार है और मराकबा समझने की कोशिश। दोनों हैं एक ही मकसद के लिए, खुद मुख्तार गालिब दिमागी एक्टिविटी को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, अपने ताबे रखने के लिए। कोई नशेई है, नशे का असर ख़त्म हुआ तो अगली नशे की डोज उस तलब की इरिटेशन को फ़ौरन ख़त्म कर सकती है, मगर इससे नशा तो नहीं छुटा। नशा छोड़ना है तो फिर इस इरिटेशन के साथ रहो, इन सारी चेंजेस को बैठे देखते रहो। नशे की तलब भी मचल रही है तो उसको भी देखते रहो। अब नशे की अगली डोज हो या तलब की हालत की बेचैनी को बैठकर देखना, दोनों का मकसद एक ही है। वो जो हालत नशे के खात्मे पर हो रही है वो हालत पैदा ना हो। अगली डोज उस हालत को और सीरियस करती जाएगी और ड्रग और नशे की लत पर और उसके नतायज जो बॉडी और माइंड पर पड़ रहे हैं को देखते रहने का अल्टीमेट नतीजा ये होगा कि वो डिस्कम्फर्ट कमज़ोर होता होता एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये हौसला मंद रवैया है, बहादुरों का रवैया। ये फरार का नहीं, समझ का रास्ता है। तुम पता है क्या करते हो? तुम ये करते हो कि बस उस वक्त मुसीबत टल जाए, मगर कौन सी मुसीबत कब टली है? बिना समझे, बिना भुगते, बिना जिए। स्कूल की एक क्लास को जहन में सोचो ज़रा। एक लड़का है, क्लास जा रहा है, सब पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। एक लड़का है जो पढ़ने से बचने के लिए कभी क्लास बंक कर रहा है, कभी कोई बहाने बना रहा है, कभी कोई। वो उस दिन के स्कूल से तो बच जाता है और दूसरे बच्चों के मुकाबले में हो सकता है कि उस दिन वो ज़्यादा खुश भी हो। मगर ये क्लास जिए बिना, भुगते बिना, जिए बिना इसकी खुलासी होगी नहीं, या उसे बार बार उसी क्लास में माँ बाप, माशरा बिठाता रहेगा, या फिर माशरा बाद की उसकी ज़िंदगी में नाकामी का तौक उसके गले में लेबल की तरह सजा कर उसे जलील करता रहेगा। और वही खुश लड़का जो क्लास के बाद दूसरे पढ़ाकू लड़के को चिढ़ा चिढ़ा कर उन फिल्मों, उन तफरीहों का जिक्र सुनाता था जो वो स्कूल से भाग कर करता था, अब उस लड़के को ज़िंदगी में कामयाब देखता है तो पछताता है। मुसीबतों की गुत्थी समझ की उंगलियों से सुलझे ना तो उम्र भर साथ चलती है। तुम्हें भी शॉपिंग, शराब, सिनेमा की शानदार सीटों में मज़े से बैठकर फिल्म देखता इंसान खुश लगता है, कामयाब लगता है, उस जैसा होने को दिल करता है। यही तो तुम कर रहे हो, यही तो तुम देख रहे हो, यही तो तुम्हारी मंजिलें हैं। भगोड़ों को आइडियल बना रहे हो। तुम्हारे आदर्श वो वॉरियर नहीं, वो जंगजू नहीं जिन्होंने इस जिंदगी की गुत्थी को सुलझाया। ये है तुम्हारा अलमिया। मुसीबत से बचने, भागने से मुसीबतें नहीं टला करती, वो बड़ी होकर सामने आती हैं। इससे भागो मत। मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल पता है कौन सा है? इस माइंड से, इसकी चपड़ चपड़ से कैसे निजात मिले? किससे निजात चाहते हो जिसको तुमने खुद पहचाना नहीं, जिसको तुमने समझने की कोशिश नहीं की? इसको पहले समझो, इससे पहचान, शनाख्त बनाओ, इससे ताल्लुक़ डेवलप करो, इससे ये नासमझी की दुश्मनी छोड़ो और समझ की दोस्ती बनाओ। और पता है, जिसने भी ये कर लिया वो किसी गुरु शुरू के सामने ये सवाल लेकर ना जाएगा कि माइंड से निजात चाहता हूँ। किसी गुरु के पास, किसी मुकद्दस से मुकद्दस टूल के पास तुम्हारे माइंड का हल है ही नहीं। हल तो है समझ में, हल तो है इस टूल को पहचानने में। रास्ता तो यही एक है और यही एक रहेगा। और मज़ेदार वाक़या पता है क्या होता है कि तुम जब थोड़ा थोड़ा वक्त निकालना शुरू करते हो और मेडिटेशन या अपने साथ बैठना शुरू करते हो, लालच में नहीं, ख्वाहिश की ग़ुलामी में नहीं, किसी सूफ़ी की ज़िंदगी को कामयाबी का मीनार बनाकर उस तक पहुँचने की तमन्ना में नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ, हमदर्दी के साथ, इस टूल के सारे कोने खुदरों को समझने के लिए कि जिससे ज़िंदगी डिफ़ाइन हो रही है, कामयाबी नाकामी तय हो रही है, दुख सुख तय हो रहा है, चलना फिरना तय हो रहा है। जब पूरी ईमानदारी के साथ बिना लालच ये बैठना शुरू करते हो और फिर किस्मत से अगर उस मकाम पर पहुंच जाते हो जहां माइंड दुश्मन ना रहे, सारा समझ लिया जाए, सारा खोज लिया जाए, दरियाफ्त कर लिया जाए, तो फिर तुम जानोगे कि मैं तो ये था ही। यही इनलाइटनमेंट है।
रुकावट समझ ली गई तो जिंदगी इनलाइटेंड है। फिर किसी भी मसले सवाल के जवाब के लिए तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम खुद होगे गुरु। बनना ही है तो क्यों चेला बनना, गुरु बनो। ये जो गुरु आज तक रहे हैं, इनका काम तुम्हें कहीं ले जाना, कहीं पहुंचाना नहीं था। इनका भी यही काम था कि तुम्हें तुम्हारे साथ बिठाने के लिए मोटिवेट करें। ये बात तो छोटी सी है, मगर जो किसी गुरु की मोटिवेशन में खुद के साथ बैठ गया और जहां पहुंचा और जो उसने देखा, उससे पूछो कि फिर गुरु क्या है, उसका जवाब पता है क्या होगा? सब कुछ वही है। क्लास में 100 लड़के बैठे हैं, एक कामयाब हुआ, 99 नाकाम, तो उस्ताद कैसा हुआ? यकीनन बुरा। मगर उस कामयाब लड़के से पूछना, उसका जवाब क्या होगा? कामिल उस्ताद। यही गुरु का काम है, तुम्हें तुम्हारी तरफ फेंकते रहना, लौटाते रहना। अब दौर बदल गया है, वक्त के तकाजे बदल गए हैं। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत से टूल हैं, बहुत से जरिए हैं, मगर बहुत सा शोर भी है, मुदाखलतें भी हैं, रंग व नूर का फैला हुआ पूरा जाल भी है। उठो, करो हिम्मत, निकालो कोयलों की कान से हीरा, समझ का हीरा। ये हीरा है माइंड को समझ लेना। जिस वक्त माइंड समझ लिया गया, ये टूल समझ लिया गया, उस वक्त कोई भी चीज मसला ना रहेगी। मकान, घर, नौकरी नहीं, मौत, कयामत, जन्नत, जहन्नम, कोई भी चीज मसला ना रहेगी, क्योंकि जिंदगी के इवेंट्स को मसला कहकर दिखाने वाला मर गया है। ये होती है माइंड से मुक्ति। मौत इस तरह नहीं जिस तरह तुम जानते हो। मौत इस तरह के जब माइंड समझ लिया गया, उसका पूरा मैकेनिज्म जान लिया गया, तो वो मर गया। जैसे अंधेरे कमरे में बिजली का बल्ब जला देने से अंधेरा नहीं ढूंढा जा सकता, इसी तरह समझ का चिराग जल उठे तो माइंड नाम का अंधेरा कहीं नहीं पाओगे। अब इस बात को तुम्हारी मौजूदा हालत में रहते हुए समझ पाना ये कुछ मुश्किल काम लगता है। तुम जिस हालत में हो उसमें ये समझोगे कि दिमाग सोचना छोड़ देगा, उसकी सलाहियत कम हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, इसकी सलाहियत तो कई हजार गुना बढ़ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कई गुना हो जाएगी। मगर ये हकीकत समझ उन्हीं के आएगी जो इस हालत तक पहुँचे हैं, जिन्होंने समझ के दिए से शऊर के कमरे को रोशन किया है। ये काम मुश्किल नहीं है, इसलिए इसमें कोशिश नहीं है, इसलिए इसमें लड़ना नहीं है, इसमें विल पावर नहीं है। अगर तुम मेडिटेशन के नाम पर माइंड से लड़ रहे हो, इसको दबा रहे हो, तो फिर तुम गलत तरफ जा रहे हो। लड़ना, कोशिश करना, यही तो माइंड है। इस टूल से माइंड को मजबूत किया जा सकता है, उसी माइंड को कि जिसको तुम कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे कि लड़ना और कोशिश करना क्यों इस राह में मदद नहीं उल्टा रुकावट है।